a vote of thanks to the Honorable Vice Chancellor, Professor Rajesh Singh sir, for blessing us. Professor H.K. Singh sir. Please check if his speaker is mute, because they have muted the speaker. So on his speaker. We express our gratefulness to Honorable Vice Chancellor of Lalit and Mr. University Darbhanga, Professor Rajesh Singh sir, to provide chance to host this conference on economic, social and political aspect of COVID-19. And I do hope this DV college will organize such type of academic events in mega way. I have seen they have organized certain technical sessions and very good reputed papers they have got. I request the DB college to incorporate those papers in their needed book shape, and Honorable Vice Chancellor will bless that college to organize this type of event. We are aware there is one limitation of Zoom link, that after every 40 minutes it is de-linked. I request every participant to Zoom connect by the same password and ID, so that our technical session after reconnecting will continue. And I request the organizers to start the process for this session. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. So Thank you, sir. I quit. Moving much. forward in the channel, now I would like to invite the Honorable Judge Shri Shivendra Mishra, Secretary, District Legal Services, Allahabad, and a very proud alumni of University of Allahabad, to kindly bless us with his noble work. Honorable Judge Shri Shivendra Mishra ji. Honorable Judge Shri Shivendra Mishra ji, Secretary, District Legal Services Authority. Shivendra Mishra, sir. Honorable Judge Shri Shivendra Mishra ji, Secretary, District Legal Service Authority. Kindly bless us, sir. Shivendra Mishra, sir. सर लाइन पे नहीं है क्या? आपको बोलने के लिए बोला जा रहा है सर. Very shortly, Dr. Shri Shivendra Mishra ji will be joining us. Currently serving as Secretary, District Legal Services Authority. One minute, sir. 1 minute. Yes, sir. Welcome, sir. Welcome to Shivendra Mishra, sir. I officially welcome Dr. Shri Shivendra Mishra ji, Secretary, District Legal Services Authority, sir. Over to you, sir. Kindly bless us with your noble words, sir. Thank you. सबसे पहले जो डीबी कॉलेज जयनगर के और आईएमसीडी के द्वारा जो ये आज सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पर्सपेक्ट जो है कोविड-19 पे, और आज हम सब इस विषय पे बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जूम पर उपस्थित हुए हैं, और ऐसे समस्त बड़े मार्गदर्शक जो कि सबके साथ यहाँ बैठना ये गौरव का विषय है। एक इस वैश्विक महामारी कोरोना के बीच में इतने विभिन्न पहलू पर शिक्षाविदों के इस विभिन्न विचार से हम सब एक साथ आज यहाँ फलीभूत हो रहे हैं, उपस्थित होकर उनके विचारों को सुन रहे हैं। यह गौरव का विषय भी है, और शायद इस समय इस विषय को बहुत ही मजबूती से और बहुत ही अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे उठाने की भी आवश्यकता है। जहाँ तक सामाजिक पृष्ठभूमि और सामाजिक व्यक्तित्व की बात है, तो शायद कोविड-19 हम सब देख रहे हैं कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात इसका पहला प्लेटफॉर्म पे पहली वर्किंग है। तो ये डिस्टेंसिंग वो है कि हम सब स्थान पे हैं जहाँ पे हमेशा हम इतने सामाजिक रहे हैं,
इतने ज्यादा एक दूसरे के पूरक रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहे हैं कि हम सबको आज यह सरकार को और शासन को यह बताना पड़ रहा है कि हम अब थोड़ा सा दूर रहे एक दूसरे से, और शायद यह पहला हम सब के लिए कोविड-19 से ये फर्स्ट और पहला ऐसा अनुशासन है जो हम सबको पालन करना है। आपको करो आज की जो व्यवस्था है, जो क्रम है, कैसे करूं? उसमें बहुत तेरे में कम अमाउंट समय में दे हम सबको एक दूसरे की बातों को सुनना है। जैसे भी मैंने लास्ट टाइम मेरे तो तुम्हारे काउंट ही नहीं होते, मेरे तो तुम्हारे पास मेरे को तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। आप सबके लिए इस विभिन्न विषयों पर जो कि हमारे सीधे हमारे उस पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, जो कि मानव शरीर के पश्चात ही हमारे साथ जुड़ा रहता है, चाहे वो सामाजिक आधार हो, चाहे वो आर्थिक आधार हो या वो राजनीतिक आधार हो, बैंक में तो ये सारे आधार हमेशा तुमको मिलता है ना, मानव शरीर से हमेशा जुड़े रहते हैं। और इसलिए आज इस पृष्ठभूमि पे बात करना एक बहुत आवश्यक भी है। हम सब जानते हैं इंडिया, हम भारत के लोग की अवधारणा लेकर भारत का जो बोलो कैसे करना है, और उस प्रस्तावना से जब हम काम तुमको भेज देती हूँ, बताओ। देख तुम मुझे बताओ अभी कैसे करते हैं। दायरा जो है किसमें से करूँ, गूगल पे से? जो दिक्कतें हैं रुको वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर, उससे समाज में जो एक नई एकजुटता उठी है, एक नई दिशा को, और खासतौर पर युवाओं के बीच में, जिन्होंने इस पूरी दिक्कतों को एक साथ संभाला है, और सिर्फ संभाला नहीं है बल्कि लोगों को जागरूक किया है कि उन समस्त लोगों को एक साथ लेकर चलना है। हम सबको यह ध्यान रखना होगा कि जो भी आज ये दिक्कत है, ये कुछ समय की दिक्कत है, और इस कुछ समय की नहीं, ये तुम्हारे मोबाइल पे ऐसी है, एंटर मोबाइल नंबर, तुम्हारा नंबर डालो। मजबूती से करना होगा। हम सबको ये समझना होगा कि मेरा ना मेरा नंबर डालो ना। कार्य आसानी से हो जाते हैं। और क्या है फोन पे लगा हुआ है, बता ना, जल्दी करना। नंबर तो निकाल लेंगे, मुझे नंबर कौन सा है? आज की जो परेशानी है, जिससे हमारी दायित्व और बढ़ जाते हैं, और इसलिए सामाजिक ताना बाना जो अपने देश का एक गहना भी है, उस सामाजिक ताना बाना में फिर से बोलिए 9345 एकजुटता के भी परिचायक हैं, एक साथ आने के भी परिचायक हैं। 58 फिर से 9345 अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं 392858 कि हमारे आसपास अगल बगल कोई भी व्यक्ति न भूखा रहे, न ही उसको राशन की दिक्कत हो, न ही कोई ऐसी अन्य परेशानी हो, मेडिकल हो, कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो पहुंचाया जा सकता है वो उन तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन परिस्थितियों ने बहुत अपने आप एक नई एक अवधारणा ये उत्पन्न की है। हम सबको ये भी देखना है कि अन्य दिक्कतें जो हम लोग के साथ आ सकती हैं वो ना हो। हम सब एक बड़े परिवेश में बहुत सीमित संसाधन में काम कर रहे हैं। अगर आर्थिक परिवेश की बात करें तो बहुत संसाधन कम हो गए, व्यवस्थाएं कम हो गई, जो मानव जीवन में मिला कि नहीं पे जो मतलब बन रहा है जिंदगी की वो कम हुई है। हम तो प्रकृति की तरफ गए हैं, 499 हम नेचर की तरफ जा रहे हैं, और आज देख सकते हैं कि नहीं नेचर ना, भी अच्छे कितना से कराओ साथ दे ना। रहा है। हम हम अगर ठहरे कहीं पे तो प्रकृति साफ हुई, स्वच्छ हवा हुआ, जल साफ हुए, और इसलिए यह शायद सीमित संसाधन के साथ काम करने की जो शैली है, ये नई सोच और नई व्यवस्था भी उत्पन्न की है। हम सबके साथ आज यह एक जुड़ गया है कि भारतवर्ष के कार्यों और व्यवस्था को पूरा विश्व अनुकरण कर रहा है। पूरा विश्व ये देख रहा है कि भारत जैसा बड़ा देश, जो जनसंख्या वाला देश है, विश्व में इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश, 130 करोड़। अब कहाँ गए सत्यानंद जी, कहाँ चले गए? हो गया है, क्या करें हम। पढ़ाई में न तो एकदम सबसे
सकते हो, मतलब पढ़ने ही पर ऑडियो को म्यूट करिए। अन्य विभाग की व्यवस्था वो सब इस तरह से नहीं है जो बहुत आधुनिक हम कह सकते हैं, लेकिन Shiven sir, just 1 second. Shiven sir, your voice is not audible. Kindly unmute yourself. आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने, जो गुरुजनों ने छात्रों को या युवाओं को जो सिखाया है, उसके वजह से आज युवा शक्ति परस्पर एक पॉजिटिव वर्किंग के तरफ, सकारात्मक सोच के साथ, एक अच्छे विचार के साथ, एक अच्छे सोच के साथ, एक अच्छे पवित्र कार्य पे अपने आप को निर्धारित करते हुए अपने राह पर चल रही है। इसमें आपका योगदान बहुत बड़ा है। आप वो केंद्र है जिस केंद्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को न सिर्फ शिक्षित होता है बल्कि संस्कार के गुण भी सीखता है। आपसे पहले दिन आपके द्वारा दिए गए संस्कार उसके जीवन पर्यंत रहते हैं और उस संस्कार से ही आज भारत परोपकार और विभिन्न उपकार के जो कार्यक्रम हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको आसानी से निभा पाने में अपनी महती भूमिका निभा पा रहा है। तो शायद इस अच्छे और बेहतर कार्य के लिए वो समस्त व्यक्ति जिन्होंने इस मूर्ति को गढ़ा हो, इस व्यवस्था को बनाया हो, उसको धन्यवाद और बहुत धन्यवाद देने का भी क्रम है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत बदलाव हुए हैं और देश और दुनिया में इस वैश्विक महामारी के बाद जो बदलाव हुए, जो हम देख रहे हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर जो बाहर कार्य करने की पद्धति से गए थे, वो सब घरों को अपने वापस आ रहे हैं और जो भारत गांव का देश था, वो शायद पुनः ये परिलक्षित हो रही है कि सब अपने अपने गांव पहुंच रहे हैं। गांव की ही व्यवस्था अंतिम व्यवस्था होती है, वहीं से अंतिम मदद हो सकती है, ये भी देखने को हम सबको मिल रहा है। तो शायद इस अवधारणा पे भी काम करने की आवश्यकता है कि गांव को हम इतना विकसित करें, अपने गांव में भी इस तरह के रोजगार के इस तरह के साधन उपलब्ध कराएं कि लोग या व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बहुत बाहर निकलकर एक अलग तरीके से रहने का या परेशान होने का या दिक्कत सहने के लिए न जा पाए। ये भी सोच और एक कार्य पद्धति हम सब अपने माध्यम से, अपने केंद्र के माध्यम से या विश्वविद्यालयों में इस तरह की सोच और एक बड़े आयोजन के साथ इसका भी हम हल ढूंढ सकते हैं। और शायद यह कार्य एक शिक्षा का मंदिर, शिक्षाविद ये जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर संविधान हो, वो भारत का संविधान हो या कोई भी ऐसा कानून की व्यवस्था हो, उस सब में अगर विधिक शिक्षाविद लगते हैं तो वो चीज जो निकल कर बाहर आती है वो अपने आप में बहुत अलग होती है, बहुत ही बेहतर होता है। तो बिना शिक्षा के मंदिर के, बिना इस व्यवस्था के कोई भी कार्य सोचा ही नहीं जा सकता, ये असंभव है। और इसलिए आप सब का मैं आह्वान भी करता हूं इस बड़े प्लेटफॉर्म से कि आप सब इन जो विभिन्न दिक्कतें समक्ष आई हैं हम सबके, कुछ ठीक भी हुई है चीजें, प्रकृति हमारी ठीक हुई है, पर्यावरण हमारा साफ हुआ है, तो शायद इस पर भी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि आने वाले दिनों में पर्यावरण हमारा इसी प्रकार रहे, स्वच्छ हवा रहे, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो AQI है 25 पे पहुंचा, तो पहले 300 पे हुआ करता था, वो 25 पे है। जो हमारा स्वच्छ जल, जो जल नदियां हैं, जो जल है, वो सब उसकी स्वच्छता के लिए, उसकी सफाई के लिए अरबों रुपए खर्च हुए, वह इस प्रकृति ने अपने आप स्वच्छ किया है और आज RO वाटर से उसकी तुलना की जा रही है, वो पानी पीने योग्य है, जल पीने योग्य है। तो ये सब प्रकृति की व्यवस्था है। तो शायद यह प्रकृति और पर्यावरण के विषय में भी बेहतरी के लिए हम सब युवाओं के सोचने के लिए और आप सबके आवश्यक कार्यों के लिए भी ये जरूरी है कि हम लिए भी एक बड़े इस प्लेटफॉर्म पे या अन्य प्लेटफॉर्म पे या अन्य संस्थाओं में भी इसको न सिर्फ लोगों को जागरूक करें, अपितु इस तरह से लोगों को या पूरी तरह से उनके कार्य और व्यवहार और आचरण में इसको परिलक्षित हो, तो शायद यह कार्य और व्यवस्था अच्छी हो सकती है। इस पुनः इस बड़े मंच से और इस अच्छे कार्य के लिए
मैं इसके कन्वेनर डॉक्टर एस.के. सिंह साहब को और जितने बड़े व्यक्ति जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उन सबको मैं इस प्लेटफॉर्म से बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि इस तरह के आयोजन और व्यवस्था से कुछ न कुछ अच्छा बाहर निकल के आता है, जो कि हमारे कार्य और व्यवस्था में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, एक उत्तम और फलीभूत होती है। इसलिए मैं यहाँ पे आदरणीय माननीय कुलपति महोदय का, हमारे गुरुजन वृंद का, प्रोफेसर एस.के. सिंह साहब का और समस्त ऐसे व्यक्तियों का जो मुझे सुन रहे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। सबको सुनना है, उन समस्त गुरुजनों को सुनना है, जिसको सुनने के लिए मैं आप सबके समक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका ब्लेसिंग मिश्रा सर, आपका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के लिए बना रहे, प्रयागराज से लेकर के आज तक हमेशा आपका आशीर्वचन बना रहा है। It is a request to all the participants, kindly mute your mic so that the voice of the speakers could be easily audible. It is a request to all the participants who are involved, kindly mute your mic. Please, it's a request. अगर आप mute नहीं करोगे तो किसी की आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाएगी. Moving forward, the chief guest for today's program is Professor S.